Narayan. In this video, I have picked up a subject to discuss from the Sanat Sujat Parva of Mahabharata. This again is a long discourse between King Dhritarashtra and Sanat Sujata Rishi. And here he discusses the 6 kinds of renunciation, Che Prakar Ke Tyag, 6 kinds of renunciation through which, if a man actually renounces all these 6 kinds of renunciation, he can be made eligible to acquire the knowledge of the self, the knowledge of the absolute, knowledge of Brahma, the absolute, knowledge of God, knowledge of the supreme soul, Brahma Gyan, जिसे कहते हैं. So these 6 kinds of renunciation I will inform you in just in English, and then I will elaborate it in Hindi. Number 1 is not experiencing joy on occasions of prosperity. So this is primarily to inform us that the prosperity, all the instruments of prosperity must not hold us captive, must not hold us subject to its appearance and disappearance. So we must remain indifferent. Number 2 is abandonment of all sacrifices, all prayers, and all pious acts. Now, when we perform sacrifices, yajna, when we perform prayers and we perform pious acts like uh, donating or doing something for the cows, we always do this with the intention of something good coming to us by any way. So, abandoning all these pious acts and sacrifices, yajna and prayers, we ensure that we don't have any desires left. The third is abandonment of the objects of desire or withdrawal from the world. So these two are termed as similar here by the Rishi. So by default, if we are in this world, desires will come to us by default. This is the natural inclination of man, that if he is in this world, desires will actually accrue to him by default. He will have all these desires, even if he is born, he doesn't know anything, and he grows up even in a wild forest, he will have desires, because the biological nature of man will speak for itself. Biology cannot be wrong. So here the Rishi says that we have to abandon the objects of desire or withdrawal from the world. Either we can withdraw from the world, and withdrawal from the world means we have to focus on our internal self, on our heart, on the Brahma that lay inside our heart. We have to focus and we have to meditate on that Brahma, and we have to follow the process as being described in the scriptures. Or we have to abandon, if we have that wherewithal, if we have that fortitude, we can live in this world like a liberated human being, like a Jivan Mukta. We have to let go of all desires and be indifferent to all appearances and disappearances, all occasions, joy or grief that happens to us. Number 4 is we don't have to experience pain or misery when our efforts meet with frustration or failure. So this also confirms that if we perform a certain karma and we don't, we fail, we feel miserable at the result of that karma, which actually implies that we had some desire in our mind, and with that desire we acted, and since that desire did not get fulfilled, we are feeling the pain. So this nullifies the first, not the first, but we could say that it nullifies the principle that we have acted without any interest. We have actually acted with interest, and that is why on meeting with failure we are feeling the pain of that consequence. So we don't have to feel any grief or pain or misery when our efforts meet with failure. We just have to live uh, and live without any interest, will live without any desire, and we have to act without any desires. So only then we'll be able to conquer grief. Number five is we don't have to solicit our wives, our children, and other dear ones. Now this is a very subtle fact. People all know that somewhere someone will be going afar from us, or all our family members leave us some or the other day, some sooner, some later, but everybody has to go. Death is, I mean, it is ordained for all of us. So when a person dies, all the relations he had or she had with all of these family members
they all get destroyed that very moment. It only remains in memory, but eventually actually it gets destroyed. So we don't have to solicit our wives, our children. We don't have to be so much indulgent in them, our wives and children, and be so much careful and concerned for them, because everybody has their own prarabdha. Everybody lives with their own set of beliefs, and everybody will fulfill all their punya and pap. They will have to undergo the consequences of pap as well as enjoy the fruits of their punya. And the last one is we have to give away gifts to someone who is deserving and someone who solicits gifts from us. Giving away our own self also is actually fraught with the highest merit. Even if someone comes who is the most deserving, if someone actually bestows their entire self on them, that is fraught with the highest merit. I can give you one example. When Raja Bali, King Bali, was performing a sacrifice, and Trivikrama, Narayan in the form of Trivikram, which is also called as Vamadev, he went and asked 3 spaces of land, that a part of a land were only covered by his 3 steps of his small tiny legs. And Raja Bali was actually warned by his guru Shukracharya that he is none other than Vishnu. He has come here to deceive you. Don't be fooled. But Raja Bali knew that if I give it to him, he is the most deserving candidate for the gift, and it will be actually helpful to me only. It will give me the biggest merit, the highest merit. And he decides to give it away, and he decides to give away everything. He even gives his own self. The last leg is put on his own head. And because he gifted his own self also to Narayan, he was saved. He was pushed down to Sutala, but Narayan gave him a boon that you will be the Indra in the next Manvantara. So such is the glory of God, and such is the glory of giving away your own self, giving away your everything to someone who is the most deserving. So all these 6 kinds of renunciation will actually help a man to accrue the knowledge of the self, the knowledge of the supreme soul, knowledge of Brahma, the absolute. So these 6 kinds of renunciation are the most important, as described and mentioned by Rishi Sanat Sujat to Dhritarashtra. ये वीडियो में बहुत ही सुंदर व्याख्यान करने वाला हूँ. ये सनत सुजात पर्व महाभारत से लिया है, और धृतराष्ट्र और ऋषि सनत सुजात, ये दोनों के बीच का सुंदर संवाद है. ब्रह्म ज्ञान के ऊपर दोनों संवाद कर रहे हैं. बहुत सारे प्रश्न धृतराष्ट्र से पूछे जा रहे हैं और ऋषि उत्तर दे रहे हैं, और उसमें ये एक उनको तप को लेकर प्रश्न पूछते हैं कि कौन सा तप श्रेष्ठ है और कौन से तप में मलिनता आ जाती है. तो उसमें ही ये लंबा उत्तर है. उसमें ये 6 प्रकार के त्याग का वर्णन है. ऋषि सनत सुजात धृतराष्ट्र को कहते हैं कि अगर ये 6 प्रकार के त्याग जो है, अगर कोई मनुष्य अगर ये 6 प्रकार के त्यागों को त्याग कर दे, त्याग करने लायक है, उसको त्याग कर दे, तो उसको उसके जीवन में ब्रह्म ज्ञान मिल सकता है. और इसी 6 प्रकार के त्याग से ही ब्रह्म ज्ञान आता है. तो वह पात्रता सिद्ध कर सकता है कि वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का पात्र बन जाए. तो ये 6 प्रकार के त्याग. पहला त्याग है कि अगर आपके जीवन में कोई समृद्धि और कोई सुंदर अवसर आया है, सुखमय या लाभमय अवसर आया है, तो आपको उसमें बहुत ही प्रसन्न नहीं होना है. आपको प्रसन्नता का त्याग करना है. इसके मूल में हमको ये देखा जाना चाहिए कि अगर हम प्रसन्न होते हैं, अगर हमारे घर में कुछ धन आता है, हमारे घर में संतति आती है, हम नया घर लेते हैं, नई गाड़ी लेते हैं, या हमारी समृद्धि होती है, या हमारा विवाह होता है, कुछ भी होता है, कुछ अच्छा अवसर आता है, हमारे घर में शुभ होता है, हमारे घर में लाभ आता है, ये दोनों के आने से अगर हम हर्ष में आ जाते हैं, हम प्रसन्न हो जाते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि जो हम हर्ष अनुभव करते हैं, तो वो हर्ष अनुभव करने के बाद हमें और सकाम करने की इच्छा होने लगती है, और फिर हम उसके बाद और काम करते हैं, और कामना रखते हैं कि ये मेरे घर में और शुभ आए, और लाभ आए, और फिर हम ये चक्कर में डूब जाते हैं, और फिर हम ब्रह्म ज्ञान से वंचित रहते हैं. तो इसीलिए ऋषि ने कहा है कि आपको जो प्रसन्नता होती है उसको ही उसका ही त्याग कर देना है. इसका अर्थ ये भी होता है कि जो भी
समृद्धि का साधन है। अगर समृद्धि का साधन आने से आप प्रसन्न होते हैं तो आप समृद्धि के वश में है, समृद्धि के साधन के वश में है। अगर समृद्धि का साधन आपके घर में आए, आपको कुछ फर्क ही ना पड़े, आप कितना भी बहुत सबसे बड़े धनवान बन जाए, मगर जनक राजा के जैसे राजगद्दी पे बैठे हैं, फिर भी आप निर्मोही हैं, तो आप श्रेष्ठ गिने जाएंगे। तो यही सनत सुजाता कहते हैं कि आपको प्रसन्नता का ही त्याग करना है। दूसरा त्याग है आपको यज्ञ, प्रार्थनाएं और पवित्र जो कर्म करते हैं उन सभी का हमें त्याग करना है। तो यज्ञ का त्याग करने का अर्थ यह हुआ कि यज्ञ जब भी हम करते हैं तो उसके पहले हम संकल्प लेते हैं। तो संकल्प लेते हैं तो संकल्प तो हमारे समृद्धि के लिए, हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही होता है। तो इसीलिए हमको यज्ञ का त्याग करने का उपदेश दिया गया है। यज्ञ माने संकल्प पूरा करने का एक साधन, तो वो साधन का ही त्याग कर दे तो हमारी जो इच्छाएं हैं उसका भी त्याग धीरे धीरे हो जाएगा। दूसरा है प्रार्थना। प्रार्थना हम करते हैं भगवान से कि भगवान हमें हमें ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए, हम इतना कुछ करते हैं तो आप हमारी तरफ देखिए थोड़ा सा, हम भी यहाँ पर है, हमें कुछ लाभ करवाइए, हमारे पड़ोसी के घर पे बहुत अच्छा हो रहा है तो हमारी तरफ भी देखिए। तो ऐसा लोग बोलते हैं। तो ये प्रार्थनाएं जो होती है उसका भी त्याग करना है, क्योंकि भगवान को तो सब पता होता है कि आपको और हमको क्या चाहिए। भगवान तो सर्व ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, तो उनको सब पता है। तो हम बताएंगे तो ही उनको पता चलेगा, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि भगवान हमारे सबके भीतर है, तो भीतर रहते हुए तो उनको हमसे भी अधिक पता है कि हमको क्या चाहिए। मगर हम भटक जाते हैं, हम इस शरीर को ही आत्मा मान के फिर शरीर का पोषण करने में हम सारे कर्म करते हैं और मान अपमान में डूबे रहते हैं, समृद्धि और उसमें डूबे रहते हैं, धन इत्यादि में डूबे रहते हैं। तो इसीलिए हमको प्रार्थनाओं का त्याग करना है और हम पवित्र कर्म करते हैं, जैसे हमने गौशाला में दान दिया है, हमने गाय को घास खिला दिया है। ये जो काम, जो क्रिया है, वो क्रिया अधिकतम लोग, लगभग सब लोग, ये क्रिया के पीछे उनका कोई मूल, उनका कारण होता है, उनकी इच्छा छुपी हुई होती है कि अगर मैं गाय को घास खिला दूं तो मेरे पितृ तृप्त होंगे, पितृ तृप्त होंगे तो मुझे कुछ देंगे। तो ये जो इच्छाएं होती है, ये इच्छाओं का त्याग ही इस तीनों से संभव है। ये तीनों का त्याग माने हमको मूल में इसका यही है कि हमारे जो संकल्प है, हमारी इच्छाएं है, उसको हम निर्बल बना दे, इच्छाओं का वृक्ष है उसको सुखा दे, और तो ही ब्रह्म ज्ञान आता है। फिर आता है आपको अपने जो इच्छा है, इच्छाओं का ही त्याग, या तो आपको संसार से विमुख होना। तो ऋषि ने यहाँ पर दोनों को समान भाव से देखा है। या तो आप संसार से विमुख होना, यानी इच्छाओं का त्याग हो जाना कहा गया है। अगर इच्छाओं का त्याग हो जाता है तो इसका अर्थ ये भी होता है कि आप संसार से विमुख हो गए हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर कोई मनुष्य को डाल दे संसार में तो इच्छाएं उसको घेर ही लेगी, क्योंकि उसका स्वभाव ही है, उसका शरीर का स्वभाव है। उसकी जो तीन वासनाएं होती है, सत्व रजस, जो प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सत्व रजस तमस, इसके आधार पर ही हमारी सब इच्छाएं अच्छी बुरी आगे बढ़ती है। तो इच्छाओं का आना तो स्वाभाविक ही है, ये प्रकृति ही है। तो ऋषि कहते हैं कि इसका ही अगर त्याग करना है तो हमको संसार से विमुख होना पड़ेगा। तो या तो हम संसार में रहते हुए जीवन मुक्त की तरह जिए। जीवन मुक्त कैसे बना जाता है? हमको गुरु के पास बैठकर शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना है, परंपरागत शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना है, और फिर वह ज्ञान को हमको चिंतन में डालना है, क्रियान्वित करना है जीवन में, और फिर धीरे धीरे सालों के बाद हम सक्षम बन सकते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञान के पात्र बन सके, और फिर हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें तो हमें जल्दी से प्राप्त हो सकता है। और ब्रह्म ज्ञान करने से हम अंतर्मुखी ही होंगे, हम बहिर्मुखी नहीं रहेंगे, हम संसार में भटकेंगे नहीं, संसार में आसक्त नहीं रहेंगे, हमारी इंद्रिया ठप हो जाएगी, हमारा मन केवल और केवल हमारे हृदय में जाकर ब्रह्म की खोज में ही लग पड़ेगा। तो ये इसका अर्थ है कि हमको इच्छाओं का त्याग और या तो फिर संसार से विमुख होना। संसार से विमुख जैसे जनक राजा जीते थे,
जैसे भगीरथ राजा भी संसार से विमुख होकर जीते थे, संसार में थे, राजा भी थे, मगर राजगद्दी का मोह नहीं, तो वो संसार से विमुख ही गए, क्योंकि उनको संसार से विमुख हो गए तो इसका अर्थ ये भी होता है कि उनमें कोई इच्छा भी नहीं थी, भगीरथ राजा में कोई इच्छा नहीं थी। बहुत सुंदर वर्णन है योग वशिष्ठ में भगीरथ का राजा के कथाओं का। उसके बाद आता है आपको अपनी पत्नियां, अपने पुत्र और अपने प्रियजन में इतनी आसक्ति नहीं रखनी। इसका अर्थ ये होता है कि हमें ये देखना है, वास्तविक हमें परम सत्य ही देखना है। देखो, मृत्यु हम सबकी होने वाली है, आज नहीं तो कल, कोई जल्दी जाता है, कोई लेट जाता है, मगर मृत्यु सनातन सत्य है और मृत्यु तो अटल है। मृत्यु बहुत मतलब मार्कंडेय ऋषि जैसे होते हैं, वो मृत्यु को जीत सकते हैं, और ऐसे तो करोड़ों करोड़ों युगों युगों में एक आते हैं। तो मृत्यु तो हम सब के लिए सनातन सत्य है। तो एक दिन जब कोई मरता है तो उसका जो संबंध होता है परिवारजनों से, वो उसी दिन टूट जाता है, वह समाप्त ही हो जाता है, केवल और केवल स्मृतियों में रहता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि पहले से ही हम अगर हमारी पत्नियों में, हमारे पुत्रों में और हमारे जो सभी प्रियजन है उसमें हम आसक्ति न रखें, और ये भाव से हम व्यवहार करें कि भाई ये क्षण भंगुर है, ये संबंध भी क्षण भंगुर है, पत्नी का, पुत्र का, और सभी का अपना अपना प्रारब्ध होता है। तो मैं अगर इतना आसक्त न हो, अनासक्त भाव से ही मैं जीवन मुक्त के जैसे जीव में, तो फिर मैं शोक मग्न नहीं होऊंगा जब ये मुझसे छूटेंगे या मैं उनसे पहले चला जाता हूँ। तो मुझे अगर संसार का त्याग करना है तो मैं शोक में नहीं आऊंगा, मैं प्रसन्नता पूर्वक संसार का त्याग करके फिर मैं ब्रह्म ज्ञान के लिए मैं निकल पड़ूंगा। तो ये हो गया पांचवा। इसके लास्ट आता है कि अगर आपके सामने कोई उचित पात्र आए तो आपको अपना सर्वस्व ही दे देना है। आपको जो भी भेंट है वह सभी आपको उनको दे देना है, अपने आप को भी आप दे देना है अगर कोई उचित पात्र आए तो। इसका एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे और वहां पर त्रिविक्रम, जो नारायण ने अवतार लिया था, त्रिविक्रम यानी वामन भगवान, छोटे से बालक के स्वरूप में आए थे, छोटे छोटे पैर थे उनके, और उन्होंने केवल 3 कद की भूमि मांगी। उन्होंने कहा कि मैं 3 पद ऐसा चलूंगा, 3 पग मेरे इतने भूमि पर चलेंगे, उतनी ही मुझे भूमि आप दान में दे दीजिए। और राजा बलि को शुक्राचार्य उनके गुरु ने कहा, उनको वार्निंग भी दी कि ये विष्णु ही है और ये आपको छलने के लिए आए हैं, तो आप कृपा करके सतर्क रहिए, इनको कुछ न दीजिएगा। उनको बहुत समझाया था। ऋग्वेद का एक ऋषि है, उनका ज्ञान देकर उनको समझाया कि आपको कब हाँ बोलना है, कब ना बोलना है, जिससे आपका उद्धार हो। ये सभी समझाया, मगर वो नहीं समझे। मगर राजा बलि को अंदर तो पता था कि अगर ये विष्णु भी है और ये कुछ मांगने आए हैं ब्राह्मण के स्वरूप में, ब्राह्मण के स्वरूप में है, कश्यप के पुत्र है, तो अगर मैं इनको दान दे दूं, भले जो भी मांगे, मैं अपना सर्वस्व भी दे दूं, तो ये सबसे उचित पात्र है। अगर सबसे उचित पात्र को मैं सब कुछ भी दे दूं, अपने आप को भी दे दूं, मेरा सर्वस्व दे दूं, तो वह सबसे बड़ा त्याग होगा और उसका फल भी सबसे बड़ा होगा। ये राजा बलि को पता था और इन्होंने दे दिया। 3 पग भूमि मांगी तो तीसरा पैर तो उनको अपने सिर पे रखना पड़ा। सिर पे रखना पड़ा माने उन्होंने कहा कि मुझे भी आप ले लीजिए, और उनको सूतल में दबा कर नीचे डाल दिया। सूतल में अभी भी जीवित है, मगर प्रसन्नता इतनी हुई भगवान को कि भगवान ने कहा कि जाओ, अगर आपने इतना बड़ा दान दिया है, आपने अपना सर्वस्व ही दे दिया है, अपने आप को दे दिया है, इसीलिए इसी के कारण ही मैं आपको अगले मनवंतर में इंद्र बनाऊंगा। तो ये देखिए, भगवान की कृपा देखिए, सर्वस्व त्याग देने से मनवंतर मिल गया। अगला मनवंतर में इंद्र बनेंगे तो कितने करोड़ों वर्ष जिएंगे आप सोचिए। ये भगवान की कृपा होती है, सर्वस्व त्याग का। तो ये भगवान ने, ऋषि ने कहा है कि ये हमको करना है। और जो वो कहते हैं कि ये 6 के 6 त्याग है, वो अगर 6 के 6 त्याग कोई कर दे, और ऐसा सामर्थ्य हो किसी पुरुष में कि 6 के 6 त्याग कर दे और सफल हो जाए, तो उसके बाद उसको इसी के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। उसके हृदय में ही उसकी आत्मा का प्रकाश वह स्वयं देख सकता है, अनुभव कर सकता है। और फिर उन्होंने कहे है कि जो ब्रह्म है उसके गुण उन्होंने कहे हैं, वह है सत्य।
कि जो मनुष्य ब्रह्म को जान लेता है वह सत्य में स्थित रहता है, सत्यवाणी ही बोलता है और सब कुछ सत्य में ही स्थित है। भगवान भी सत्य में स्थित है और सत्य का ही सब कुछ आश्रय लेते हैं। तो सत्य में ही मूल वह बैठ जाते हैं, सत्य में ही आश्रय ले लेते हैं। दूसरा होता है ध्यान, वह ध्यान करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, ब्रह्म का चिंतन करते हैं। जैसे सांख्य योग में कपिल भगवान कहते हैं, भगवान का एक एक अंग का वर्णन करते हैं। तो एक एक अंग का वर्णन करते करते फिर हम पूरे भगवान का एक जो उनका एक रूप होता है, वह रूप हमारे मन में ऐसे बसा लेते हैं और उसका इतना ध्यान करते हैं कि हम हमारे देह को ही भूल जाते हैं, हम हमारे अस्तित्व को ही भूल जाते हैं और मैं केवल और केवल भगवान में मग्न हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं और इसी के कारण हमें भगवान के साथ एकाकार हो जाता है। उसके बाद आता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये दोनों में आपको एक जो इसका विभाजन है उसको आपको करना आना चाहिए। जैसे कि मैं दृष्टा हूँ, मैं कुछ देख रहा हूँ और एक दृश्य है, तो मुझे पता होना चाहिए दृष्टा और दृश्य में क्या अंतर है। अगर हम देखते हैं तो हम जिसको देखते हैं उसी का हम रूप ले लेते हैं, तो इतनी आसक्ति हम में होती है। तो हमको ये दोनों का विभाजन करने का एक विवेक बुद्धि उत्पन्न होती है ब्रह्म ज्ञान से। उसके बाद आता है कि आपको किसी भी वाक्य का, किसी भी ज्ञान का या किसी भी आप कुछ देखे, कुछ चेष्टा कर्म, उसका आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं केवल मन से। ऐसा आप में ज्ञान और सामर्थ्य आ जाता है। आप सभी के सभी शास्त्रों का सार तक पहुंच जाते हैं, सभी कर्मों के सार तक पहुंच जाते हैं, सभी बीजों के सार तक पहुंच जाते हैं, सभी के मूल में पहुंच जाते हैं और सभी का मूल आपको हाथ में आ जाता है। फिर आपको संसार से विमुख होना है। संसार से विमुख होना है मतलब आपको अंतर्मुखी होना है। जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वह केवल और केवल अंतर्मुखी ही होते हैं। ब्रह्म में लीन माने अपने मन में चिंतन ब्रह्म का ही करते रहते हैं। फिर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन शौचाचार से होता है। आप स्त्री को देखे तो नहीं, मगर स्त्री का मन में भी विचार ना आए, ऐसा सामर्थ्य आप में आ जाता है ब्रह्म ज्ञान से। और इसके बाद आता है कि आप में एक ऐसी विवेक बुद्धि उद्दीप हो जाती है कि आप सब कुछ देख सकते हैं। आप भविष्य देख सकते हैं, आप भूतकाल देख सकते हैं, वर्तमान तो देखते ही है, मगर संपूर्ण संसार का और ब्रह्म का ज्ञान आप में आकर स्थित हो जाता है। ये सभी ज्ञान आप में सब कुछ एक साथ आ जाता है। और 2 पॉइंट है। आपको एक लास्ट 2 पॉइंट है ब्रह्म ज्ञानी के, आपको किसी से कोई भेंट नहीं लेनी है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप किसी के साथ कोई व्यवहार ही ना हो। भेंट का व्यवहार तो सही, मगर कोई भी व्यवहार ही ना हो, तो आप केवल और केवल अपने ज्ञान पर ही आश्रित रहे, अपने सामर्थ्य पर ही आश्रित रहे और आपको किसी से कुछ मांगना नहीं है, किसी की संपत्ति है उसको देखना भी नहीं है। इसका अर्थ ये भी होता है कि आपको अपने सामर्थ्य का आश्रय ही लेना है। कुछ भी हो जाए जीवन में, अगर अकाल आ जाए, अगर बहुत ही दुविधा आ जाए जीवन में, तो आपको अपने आप में ही सामर्थ्यवान रह के रहना है, किसी से कुछ मांगना ही नहीं है। भले मृत्यु आ जाए, वो आपको अपना प्रारब्ध ही समझना है। तो ये मृत्यु आ जाए फिर भी आपको किसी से कुछ मांगना नहीं है। तो केवल और केवल भगवान का आश्रय, भगवान पर ही निर्भर रहकर जीना, अपने ज्ञान पर ही रहकर निर्भर रह के जीना, यही ये सब ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण और गुण कहे गए हैं। तो ये सुंदर उत्तर ऋषि सनत सुजात ने धृतराष्ट्र का किया है कि भाई 6 प्रकार के त्याग से मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान आ सकता है। वह ऐसी पात्रता प्राप्त कर सकते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी प्राप्त करने के अधिकारी बने और फिर वो प्रयास करे तो जल्दी से ब्रह्म ज्ञान आ सकता है। मगर ये आरंभ होता है शास्त्रों के अध्ययन से, गुरु के चरण में बैठ के शास्त्र पढ़ने, बहुत ही शास्त्रों का अध्ययन करना, उसका सार प्राप्त करना और फिर धीरे धीरे संसार में रहते हुए ये सब त्याग करने के बाद फिर ब्रह्म ज्ञान धीरे धीरे उद्दीप होता है हमारे जीवन में, उसका प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जाता है।
और हमारे हृदय में जो आत्मा है, जो परम तत्व है, उसके प्रकाश को हम अनुभव करने के योग्य बन सकते हैं। ऐसे अगर आपको सुंदर वीडियोस पसंद है, संवाद हमारे शास्त्रों के पसंद है, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गोवर्धन मठ नाम का एक सुंदर चैनल है यूट्यूब पर, उसको आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। वहां पर आपको संपूर्ण वैदिक वांग्मय का ज्ञान मिलेगा। अगर आप वो सुनते हैं और सुनने के बाद आपके जीवन में उतारते हैं, तो आपका जल्दी से उद्धार अवश्य निश्चित है। शिव शंकर प्रलयंकर।